थी वो आज केज्ड पैरेट बन गई हैं बीजेपी का। और इलेक्शन कमीशन ने पहले भी हमारे साथ धोखा किया डिलिमिटेशन के माध्यम से कर रहा है। और इवेंचुअली क्या होगा ये भी आप देखेंगे, क्योंकि हमको सच नजर आ गया ना इनका, हमको इनकी बात समझ आ गई है। क्योंकि ये 25 लाख का फर्जीवाड़े के ऊपर अंदर बात नहीं करेंगे, ये आज वहाँ पे खामोश रहेंगे और ये अपनी मीटिंग चुपचाप करके खत्म करके ये टाइम बाय कर रहे हैं। और बीजेपी के जो लोग छोटे से छोटा ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके बाकी लोग जितने सीनियर लीडर हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन ही नहीं है कहीं, तो आप कहाँ भाग रहे हो इलाकों में। तो हमें इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट अनाउंस करे कि फलानी तारीख को इलेक्शन होगी। अगर ये इतने सच्चे और ईमानदार हैं, दे मस्ट अनाउंस डेट्स, अगर अदरवाइज 25 लाख वोटरों का जो फर्जीवाड़ा बनाया बीजेपी ने बाहरी राज्यों से आकर जम्मू के डोगरे और कश्मीर के कश्मीरी की पहचान को मिटाने के लिए, उसका विरोध करते हुए हम यहाँ पर धरने पर हैं। दिल्ली में भी की है, लेकिन देखा यही है। The topic of discussion was a presentation by the Chief Electoral Officer as to how they are going about doing this summary revision of votes. What is the process by virtue of which new voters will be added? People who have attained an age of 18 years till October 2022 will be added as voters. Apart from that, there were confusions on account of various political parties. Like for instance, they said, how do you define an ordinarily resident? Because the issue of non-local voters has come up. So they say, how do you define that somebody is ordinarily resident in J&K? So the answer to that was clarified by us also and later by the CA also, that Representation of People's Act 1950-51 Section 20 read with 16, Section 16 clearly, elaborately, in great detail tells us that who would be an ordinary resident. So then there was an apprehension which was raised by one of the political party saying that how do you determine that somebody is not applying for votes at two different places. So they clarified that there are affidavits, there are forms, there are safeguards. So I think everybody was satisfied and the issue of non-local voters was properly addressed. Ekjut Jammu party also said that this election office should not gather this impression that everybody in Jammu is opposed to this inclusion of Indians as voters or West Pakistani refugees or Gorkha Samaj log or Valmiki Samaj people as voters. We are with 1950-51 Act. Whatever the Act prescribes, we wholeheartedly accept it, and everybody should be allowed to vote in J&K, whosoever is eligible to vote in J&K in terms of the law. And the law is 1950-51 Representation of People's Act. Let's forget about 1957 J&K Representation of People's Act, which would ask for the requirement of you being a permanent resident of the J&K state for being eligible for as a voter. So that is gone. So I think everybody was satisfied. The propaganda that other parties are doing since the time when this number of 25 lakhs had come up, I think that propaganda should settle down now because everybody was satisfied. The biggest confusion that these parties had was how do you determine who is ordinarily resident? And the answer is very in detail given in Section 20 of the Representation of People's Act 1950. Thank you. जैसे कि आपने बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ऐसा लगता है कि कानून को भी भारतीय जनता पार्टी ने ECI के साथ मिलकर बंधक बनाया हुआ है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा कौन होगा ये जम्मू कश्मीर का आवाम डिसाइड करेगा। ये बाहर से लाए हुए लोग फैसला नहीं करेंगे कि यहाँ का MLA कौन बनेगा, पुंछ का कौन बनेगा, रजौरी का कौन बनेगा, डोडा का कौन बनेगा, बारामूला अनंतनाग का कौन बनेगा। ये वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। जम्मू का नुमाइंदा कौन होगा, जम्मू के लोग डिसाइड करेंगे। ये बाहर से लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि उनको यहाँ वोटर बनाकर और वो फैसला करें कि यहाँ का नुमाइंदा कौन होगा। ये सरासर गलत है, असंवैधानिक है और इसको हम किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा ये है कि ये मीटिंगें बुलाकर लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही होता है। यहाँ ये हम 4 सालों से देख रहे हैं। जो अपोजिशन पार्टीज अपनी बात यहाँ रखती हैं उसके ऊपर कोई जो है गौर नहीं किया जाता इलेक्शन कमीशन द्वारा या सरकार द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी के डिक्टेशंस के ऊपर यहाँ काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बनाया हुआ है तमाम संस्थाओं को और जितने भी ऑटोनॉमस अदारे हैं उनको, और जिस तरीके से जमहूरियत के साथ एक मजाक किया जा रहा है उसी के खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बुलाया गया था? क्योंकि सब पार्टीज को ऑल पार्टीज मीटिंग है, इसमें सबको ओपन, ये सबको ओपन इनविटेशन है कि दिस इज गोइंग टू बी एन ऑल पार्टी मीटिंग जिसमें सब लोग आए। बाकी लोग अंदर बैठे हैं, लेकिन हम जानते हैं, हम तो पिछले 4 सालों से ऐसी मीटिंगों में बैठ रहे हैं और हर बार जो है एक मजाक किया जाता है पार्टिसिपेंट्स के साथ।
बाकी पार्टीज़ को शायद अभी समझ नहीं आई है, हम समझ चुके हैं, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं कोई नहीं सुनेगा। ये हमसे वो लिखवा के ले ले, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती है। उनके लोग कह रहे हैं तो मतलब है कि जो बीजेपी तय करेगी वही होगा, इसमें जो है इस मीटिंग में कुछ निकल कर सामने आने वाला कोई निकलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जो पूरे तरीके से देखें, ये हमारा जो मेन एहतजाज जो आ रहा है, ये जो 25 लाख